Good morning, class. Am I audible, beta? Good morning, class. Am I audible? Yes, tell me. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, Priyanjal, Vinayak, Sneha. Why are you absent, Laiba? When you will submit your homework? Yes, tell me. Yes, मुझे होमवर्क कब मिलेगा सब बच्चों का? सौरभ, 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 10th D. सौरभ, बेटा आवाज आ रही है तुम तक? सौरभ, 10th D. Yes, class, today we will see the special type of elimination method. Yes, कल हमने elimination method पढ़ा था. Is there any other doubt? Yes, tell me. क्या कोई और डाउट है? कल जो हमने क्वेश्चन किए थे एलिमिनेशन मेथड से, क्या आपको और कोई डाउट है इस एलिमिनेशन मेथड में? टेल मी फास्ट. Yes, reply me fast, beta. Otherwise, how can I know कि I am audible or not? Yes, only one student will reply. Yes, and सिर्फ अनन्या. Yes, श्रेया. बेटा किसी को डाउट तो नहीं है? Okay. Now see, I told you that today we will see the special case of elimination method. Yes, I told you that today we will see the special case of elimination method. Yes. So now I am going to start that special case. Just a minute. Ritika, message me. If you hear me, message me. Chat में message करो. Yes, you hear me. Ritika. 10th D, Ritika. Yes, Ritika. Ritika, after this class, you will message me on WhatsApp. Okay? Okay, Ritika. After this class, you will message me on WhatsApp. Is that clear? Say in yes or no. Okay, yes. Now see the special case of elimination method. Yes. बेटा अब यहाँ ध्यान से देखना है आपने. If you see this equation, 43x plus 67y is equals to minus 24 and 67x plus 43y is equals to plus 24. You can see in this equation कि अगर मुझे इनके कोफिशिएंट्स इक्वल बनाने हुए तो मुझे इस नंबर पहले सबसे पहले तो 67 या 43 का कोई कॉमन फैक्टर मुझे फाइंड करना होगा. और अगर I did not get any common factor of 67 and 43, then मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 67 से इक्वेशन 1 में, and in equation 2 I will multiply by 43. Yes or no? Yes. समझ आ रहा है क्या बोला है मैंने? देखो यहाँ पे 43 है, यहाँ 67 है, यहाँ 67 है, यहाँ 43 है. तो अगर मुझे इनमें से किसी भी कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है तो मुझे इस इक्वेशन को 43 से या इस इक्वेशन को 67 से इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? गिव मी, रिप्लाई मी इन यस और नो. जस्ट यस.
अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 43 से लेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरी कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो जाएगी ना, और वो कैलकुलेशन मेरी गलत भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि पहले मुझे 43 को 43 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 67 को 43 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 24 को 43 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से इस इक्वेशन में 67 को 67 से, 43 को 67 से, 24 को 67 से, ठीक है। तो जब आप इस टाइप की इक्वेशन देखो जहां पे इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज गिवन हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई में, उस केस में आपको एक पेन और पेंसिल हमेशा लेके बैठा करो, जो पॉइंट्स मैं बोलती हूँ उनको नोट डाउन करते रहा करो जो इंपॉर्टेंट लगते हैं आपको, ठीक है। उस केस में आप सबसे पहले ये देखो, इधर जो कॉमन चीज आपने देखनी है वो ये देखनी है, coefficient of x in first equation is 43 and coefficient of y in the second equation is 43. Similarly, coefficient of x in second equation is 67 and coefficient of y in the first equation is 67. Yes. So when I am getting these type of equation, we will do 2 steps. Only 2 steps I can get my answer. Yes. So see those steps. In the first step, my first step will be add both equations. Add both equations. So when I am, मुझे इनके साइन नहीं देखने, कुछ नहीं देखने, बस मैंने इनकी वैल्यूज देखी और देखा कि दे आर सेम, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे x में है, यहाँ y में है, यहाँ y में है, यहाँ x में है. So my first step is add both the equations. So when I add these both equations, yes, I am getting what? I will get 110 x plus 110 y is equals to 0. ये आएगा. When you add these two equation, you will get 110x plus 110y equal 0. Now tell me, can you take 110 common from x and y from left hand side? Yes or no? So I can write this equation as equal 0. I can write this equation as 110 x plus y equals 0. So my equation in this case become x plus y equal 0. बन गई. मेरे पास ये इक्वेशन आएगी बिकॉज 110 राइट हैंड साइड जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. तो my third equation is x plus y equal 0. So these equations you are getting from step 1. Now in step 2, the step 2 is subtract both equations. Subtract both equations. So when you subtract both equations, you will get what? You will get 24x. बेटा why the students came late? मुझे बार बार यहाँ से छोड़ के वहां पे उनको एडमिट करना पड़ता है. आप लोग टाइम पे क्यों नहीं आते हैं? Yes, 24x minus 24y is equals to 48. ठीक है? When you subtract these equations, so you will get 24x minus 24y is equals to 48. अब यहाँ पे कोई बच्चा साइन से प्रॉब्लम हो रहा होगा उसको कि यहाँ पे 24x जो है पॉजिटिव कैसे आ गया. तो बेटा आपने क्या किया? सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लिया. आप ये समझ लो आपने क्या किया. फ्रॉम इक्वेशन 2 यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1. आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. 1 में से 2 भी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, माइनस साइन आपका कॉमन आ जाता. तो नाउ फ्रॉम राइट हैंड साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड यू कैन टेक 24 कॉमन.
ठीक है, तुमने 24 कॉमन लिया, सो व्हाट आंसर यू विल गेट हेयर, यू विल गेट x 24 ब्रैकेट में x माइनस वाई is equals to 48. This answer you will get. ठीक है, so जैसे ही आपको ये आंसर मिला, can I say x minus y is equals to x minus y is equals to 2? Yes or no? Yes, x minus y equal to. Now x plus y equals 0 is your first equation, x minus y is equals to 2 is your fourth equation. This is your third equation, this is your fourth equation. ठीक है, so can you say here कि now I can apply elimination method in equation 3 and 4. Soumya, tell Veer of your class कि after this class he will message me on WhatsApp because I think he finds some difficulty in connecting क्योंकि बार बार उसका लिंक टूट रहा है. ठीक है, so what you will get here, what you will get, you will get तो x plus y equal 0 and x minus y equal 2 आ रहा है. So when you solve this equation, what you will get, elimination method कर दो. See, coefficient of x is 1, coefficient of y is 1, but the sign before y is opposite. So I am solving my equation. So I am solving, क्या कर रही हूँ मैं, on solving I am adding these equations. So when I am adding these equation, I will get 2x is equals to, क्या आंसर आएगा, 2. So what will be the value of x? X is equals to 1. So the value of x is equals to 1. ठीक है, and the value of y put in the third equation. So when you put this in the third equation, the value of y becomes what? Yes, you can substitute, you can apply substitution method here also. ठीक है, no, आप substitution method भी apply कर सकते हैं. So what is the value of y you will get from here? The value of y is minus 1. ठीक है, so value of y is equals to minus 1. Now tell me how many students understand this question. Yes, tell me first. Then I will give you one question that you will do and tell me the answer. ठीक है, because I consider these type of question in the very important type of question. So I am taking 5 minutes more in this question. ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये आ गया तो my elimination method end here. तो फिर इसके बाद मुझे और कुछ नहीं कराना है elimination method में. So मैं आपको एक question दे रही हूँ, write that question. ठीक है, सब अपने पास लिखो. Yes, I will repeat, but before that, if you can try, एक बार मैं repeat करती हूँ बेटा, 1 मिनट में question दे दूँ पहले, then I will repeat. ठीक है, Sarthak, Aditya and Chirag, I will repeat beta, but just wait for a while. Let's say your question is 47x, wait, लिखो, मैं बोल रही हूँ, write down 47x plus 31y is equals to 63, and your second equation is 31x plus 47y is equals to 15. ठीक है, these are your two equation. ठीक है, I write here. Those who understand this, try this again. जिनको समझ नहीं आया था उनके लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ दोबारे. ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे किसके साथ है, यहाँ पे x के साथ है, यहाँ किसके साथ है, y के साथ है, यहाँ 31 है, यहाँ 31 है, यहाँ किसके साथ है, x के साथ, यहाँ किसके साथ है, y के साथ. तो ऐसी इक्वेशंस में जहां पे मेरे कोफिशिएंट्स ऐसे हो रहे हैं और बहुत लंबी कैलकुलेशन हो रही है, इन दोस टाइप ऑफ इक्वेशन आई अप्लाइंग 2 स्टेप्स. तो मेरा जो स्टेप 1 है दैट इज एड बोथ इक्वेशन. ठीक है, एड बोथ इक्वेशन. सो व्हेन आई एड दीज 2 इक्वेशन, मेरे पास क्या आएगा, 47 प्लस 31 इज व्हाट, कितना आएगा, 78x
plus 78y, yes, is equals to, now if you add 63 में 15 तो क्या आएगा 78, again 78, तो 78. Now take 78 common. Yes, so when you take 78 common, so what you will get? So when you take 78 common, you will get x plus y. We, beta, because you find difficulty in connecting, so I'm repeating again. See here, these are the two equations. Here 47 है, यहाँ 47 है, यहाँ 31 है, यहाँ 31 है. तो आपका जो स्टेप 1 होगा उसमें आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे. सो व्हेन यू ऐड दीज टू इक्वेशन, तो 47 में आपने 31 ऐड किया तो आपको मिला 78. ऐसे यहाँ पे 78, 63 में 15 ऐड किया, you get 78. Now from left hand side I will take 78 common. So it is x plus y, ठीक है, is equals to 78. So now I will divide my equation by 78. So I will get x plus y is equals to 1. ठीक है, 78 को डिवाइड किया, x is equals to x plus 1 आ गया. Now सेकेंड स्टेप जो मैंने बोला है दैट इज स्टेप 2. ठीक है, स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन. दोनों इक्वेशन को क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो. सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, 47 में से 31 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? यस टेल मी, कितना आएगा बेटा? 16 आएगा. 16 आएगा ना. 47 में से 31 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16x. अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो इट बिकम 16y. ठीक है, 16x 16y इज इक्वल टू 63 में से 15 जाएगा. मुझे बताइए कितना आया था, जिन बच्चों ने सॉल्व किया कितना आया? 63 में से 15 गया. यस टेल मी फास्ट. 63 में से 15 गया. व्हाट आंसर यू विल गेट हियर? 48. वेरी गुड. सो 48. So now can you take 16 common from your left hand side? So I will take 16 common in left hand side. So in the bracket I will get x minus y or equals to my 48. So my equation will be, in this case what will be my equation? इस केस में मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? Yes tell me, what will be my equation? Equation will be x minus y equal किसके? 3 के. 16 3s are 48 क्योंकि, तो x minus y is equals to 3 आ गया. Yes, so now see here, this is your equation number 3. ठीक है, so x plus y equal 1 is your third equation, and x minus y equal 3 is your fourth equation. Now you can apply substitution method or elimination method here. So when I see here coefficient of x is same, coefficient of y are same, but जो coefficient है y के, ठीक है, उसके आगे जो साइन है वो क्या है? प्लस माइनस है. तो मैं एलिमिनेशन मेथड अगर इसमें अप्लाई करूंगी, सो व्हाट आंसर आई विल गेट हियर? आई विल गेट 2x is equals to 4. So what value of x you will get here? X is 2 and y की वैल्यू पुट कर दो तो y is equals to कितना आएगा? y is -1. वेरी गुड. ये जिनका 3 आया, -2 कैसे आया चिराग बेटा? आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की ना वैल्यू, तो -1 आएगा. इज दैट क्लियर? यस टेल मी, इज दैट क्लियर? नाउ इज देयर एनी डाउट? जिन्होंने मुझसे पूछा था अभी दोबारा रिपीट करने के लिए, क्या अब किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है बेटा? आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर. बेटा अदिति, अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको करोगी तो तुम्हारी
तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी लंबी हो जाएगी। तो ये मेथड समझाने का मतलब ही क्या हुआ मेरा यहाँ पे, ठीक है। वहां पे भी तुम फिर वही कर रही हो, 47 इंटू 63 और 63 इंटू 47। बेटा -1 चिराग, पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन थर्ड। तो जब तुमने इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 पुट करो, 2 प्लस वाई इक्वल 1, सो y इज इक्वल टू -1 आ गया आपका, ठीक है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? टेल मी, आई एम टेकिंग अनदर 1 मिनट। मैं सब बच्चों के लिए बोल रही हूँ बेटा, जिसका मुझे नाम दिख रहा है वो भी और जिसका नहीं दिख रहा। यस तनु, टेल मी। सौरभ, is the question clear to you? Saurav, tell me. Saurav Singh, 10th D. I don't think इसका ध्यान है क्लास में। Yes Saurav, I told you to check your homework. तुम बेटा सारे होमवर्क में एक ही फाइल डाल रहे हो, सारे होमवर्क्स में। आप अपना होमवर्क चेक तो करो, आपने मुझे सेम फाइल डाल के दी है सारे होमवर्क्स में। How can I give you the marks then? आपको क्या लग रहा है मैम चेक नहीं कर रही है, ऐसे दे रही है मार्क्स? अपनी फाइल को देखो। Yes, is this question clear? Now you want one more question of this type or I will go further? Yes, tell me. Want one more question? You want to do one more question? Yes, okay. So I am giving you, these are the special cases you will not get in your book. Remember this, you will not get in your NCERT this type of question. ठीक है, only in RD Sharma this type of questions are given. So आप इनको अच्छे से समझो यहाँ पे, इसलिए I am pressurized on it because in your NCERT you will not get this type of question. So 71x, your next question is 71x plus 37y is equals to 253. Yes, this is your first equation. Your second equation is 37x plus 71y equal 287. 287. Yes. Solve this equation fast. Yes. I am giving you 5 minutes. Solve this equation fast. You guys are solving this question? Very good, very good, very good. Fast. Yes, Hardik, very good. Yes, Ishika, very good. Beta solve करो fast. What about विनायक? विनायक क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैभव, ठीक है, सोनिया, सुहानी पांडे, why you all are not participating in any Laiba? I'm not getting any answer till now. अभी तक भी मुझे किसी भी क्लास में आप लोगों से आंसर नहीं मिल रहे हैं। शमित, साक्षी रावत, साक्षी बेटा you downloaded your uploaded your work on stream. So उसको कन्वर्ट करके उसको जहाँ पे मेंशन होता है जिस डेट का उसमें ही आप दोगे। क्लियर बेटा? Solve this question fast. Yes, very good. 2 बच्चों का 3 बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड। Ashia, solve this question. Ashia, why were you absent yesterday? Ashia, tell me the reason. Yes, Ashia. विनायक, आपको कभी मेरी क्लास में ऐसा लगा कि अगर आप दूसरों ने आंसर दे दिया तो मैं आपका आंसर नहीं कंसिडर करूंगी? Then what you are doing? तो फिर ये चारवी, ये all these students are giving so that I came to know कि yes you all understanding. अपने आप से करके देना है, चीटिंग करके नहीं देना है ना बेटा।
तो मुझे सबका, मैं सबको ये सोचती हूँ सब खुद से कर रहे हैं, तो ये मत सोचो मैंने ये सोचा है कि तुम चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। मैं पार्टिसिपेशन के लिए बोल रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि एवरी स्टूडेंट सॉल्विंग इट्स ऑन देयर ओन, और देन दे आर गिविंग मी द आंसर, ताकि मुझे ये समझ आए दैट यू अंडरस्टैंड दिस मेथड, बिकॉज यू विल नॉट गेट दिस मेथड इन योर एनसीईआरटी बुक। यस बेटा, इट इज करेक्ट। ओके, सो इट मीन्स अभी मुझे कोई बच्चे आंसर देंगे? यस बताइए, या फिर मैं फर्दर आगे चलूं? ओके, आई विल मूव फर्दर। जब आप लोग सॉल्व करें मुझे प्लीज बताइए। यस, वेरी गुड अश्मन। नाउ सी बेटा, वेरी गुड साधक, योर आंसर इज इनकरेक्ट बेटा, चेक योर कैलकुलेशन साधक। बेटा कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, एक बार चेक करो, ठीक है। Now see the exercise question, exercise 3.4 of your NCERT book, ठीक है। Your first question is, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. इसने क्या बोला, अगर मैं न्यूमरेटर में ऐड करती हूँ 1 और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करती हूँ डिनोमिनेटर से 1, तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। इट बिकम्स 1/2 इफ, वेरी गुड, जो बच्चे मुझे अभी भी आंसर दे रहे हैं वेरी गुड, ठीक है। आप ये मत सोचो मैम ने ये सोचा कि चीटिंग करके दे रहे हो, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम खुद से सॉल्व कर रहे हो। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, और ये 1/2 बन जाता है जब हम 1 सिर्फ कहाँ ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में। सो वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। नाउ सी हियर, in this question it is given that solve it by the elimination method, ठीक है, ये आपको elimination method से solve करना है। तो see here, your fraction will be x by y. So when you are adding 1 to the numerator and subtracting 1 from the denominator, you are getting what, 1, ठीक है। So your equation in this case become, ये y minus 1 इस साइड गया, so your equation become x plus 1 is equals to y minus 1, ठीक है। So in this case your equation become x minus y is equals to -2. Now in the second step जो उसने स्टेटमेंट में बोला था, वो बोला था that x upon y plus 1 is equals to 1/2। मतलब अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं तो my fraction becomes 1/2. So my equation become x upon y plus 1 equal 1/2. So this is equals to 2x is equals to y plus 1. So here I am getting 2x minus y equal 1. So when I solve these equations, what value of x and y I am getting here? X is 3, y is 5. तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, and y की वैल्यू कितनी आ गई, 5. क्लियर? तो my fraction will be 3/5. मेरा फ्रैक्शन क्या हो गया, my fraction become 3/5. Clear? Now see the next question. Your next question is 5 years ago. तो 5 years पहले की बात कर रहे हैं, तो we have to subtract 5 from the number. तो I will say let present age of Nuri is x and present age of Sonu is y. देखो इधर, present age of Nuri is x and present age of Sonu is y. Now what is given, 5 years ago. So 5 years ago की अगर बात हो रही है, तो 5 years ago की बात हो रही है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x minus 5, और इधर भी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y minus 5। और यहाँ क्या लिखा है, नूरी वॉज थ्राइस, मतलब नूरी बड़ी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इक्वल्स टू का साइन लगाओगे कब, जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो here your equation become x minus 5 is equals to 3y
-15. ठीक है, now you can solve this equation. Now the second case is then 10 years later. So when we are talking about 10 years later, so I will add x plus 10 and y plus 10. ठीक है, so Noori will be twice. ठीक है, so yes. हाँ तो बेटा नूरी बड़ी है, तभी तो हम सोनू की एज में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम लाने के लिए. यस चिराग, तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से. ठीक है, इक्वेशन की. सो आई विल गेट दिस इक्वेशन, आई विल सॉल्व दिस इक्वेशन, एंड व्हेन आई सॉल्व दिस इक्वेशन, सी व्हाट आंसर आई विल गेट. हियर देखो, इधर एक बार आप, I will get x minus 5 is equals to 3y minus 5. So when I solve this equation, I am getting x minus 3y is equals to minus 10. ऐसे Noori's age 10 years later, x plus 10. Sonu's age 10 years later, y plus 10. So this equation become x plus 10 is equals to 2y plus 20. When I solve this, I am getting x minus 2y is equals to 10. Then I solve this two equation by the method of elimination. So the Noori's age is 50 and Sonu's age is 20 years. Now listen carefully, all the students, almost all students are present here except 10 students. So you will do this question, statement questions from 1 to 5 in the homework notebook. I will attach, attach the these pages in homework. So you will do in homework notebook. जो 2 क्वेश्चन आज आपने खुद सॉल्व किए हैं, ठीक है, स्पेशल केस के, those 2 questions also you will do in your homework notebook. Is that clear? Is that clear? Now see the next question. The sum of the digits of is 9. अब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है जिसका सम 9 है. देखो बहुत सारी है. 45 का सम करूंगी अगर 4 और 5, 45, 4 और 5 को ऐड किया 9 आया. 81, 8 और 1 को ऐड किया 9 आया. 63, 6 और 3 को ऐड किया 9 आया. ठीक है, तो आप बोलोगे वंस प्लेस और टेंस प्लेस पे जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं? वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे जो नंबर है उनको x और y कंसिडर करोगे. तो यू विल राइट लेट यूनिट डिजिट बी y एंड टेंस डिजिट बी x. तो नंबर इज 10x प्लस y. यहाँ 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया ये समझ आया? क्योंकि x जो है मेरा कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है. क्योंकि x मेरा टेंस प्लेस पे है इसलिए आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 10. ठीक है, अब देखो एक इक्वेशन तो ये बन रही थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि इन दोनों डिजिट्स का सम 9 गिवन था. तो जैसे मैंने तुम्हें बोला 63 अगर गिवन है तो तुमने क्या किया था? 6 प्लस 3 किया था ना कि 60 प्लस 3. तो 6 प्लस 3 किया था, उसी तरीके से x प्लस वाई किया तो 9 आया. और जो सेकेंड केस तुम्हें गिवन है दैट ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digit. अगर मैं इस नंबर का 9 टाइम करती हूं तो जो नंबर रिवर्स होके ऑब्टेन्ड होगा उसके ट्वाइस के इक्वल होगा. मतलब तुम्हारा ओरिजिनल नंबर ये है, ठीक है, 10x प्लस वाई, दिस इज योर ओरिजिनल नंबर. तो आपने इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया और ये तुम्हारा 10y प्लस एक्स योर रिवर्सिंग नंबर, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया. तो यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x. व्हेन यू सॉल्व इट फर्दर यू आर गेटिंग 8x माइनस y इक्वल 0. सो नाउ योर फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस y इक्वल 9. योर सेकेंड इक्वेशन इज 8x माइनस y इक्वल 0. So you can get the number. You can find the value of x and y. Yes, tell me in yes or no. फिर से बताओ. देखो इधर देखो, आई एम राइटिंग हियर. देखो इधर तुम्हारा जो नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है और उसके बारे में पहली लाइन में गिवन है that the sum of the 2 डिजिट नंबर इज 9. तो
तुम लिखोगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. ठीक है, x प्लस वाई इक्वल 9 लिख दिया. नाउ सेकेंड स्टेप में वो क्या बोल रहा है, दैट ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर. मतलब ये जो मेरा नंबर है ना x एंड y, ठीक है, इसका अगर मैं 9 टाइम्स करती हूं तो इट इज अ 2 डिजिट नंबर. तो मेरा जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर वो किस फॉर्म में है, दैट इज 10x प्लस वाई फॉर्म में. ठीक है, तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर है. अगर मैं इस नंबर को रिवर्स कर रही हूँ, रिवर्सिंग द नंबर कर रही हूं, तो व्हाट आंसर आई विल गेट, 10y प्लस x. यस, टेंस प्लेस को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ व्हाट इज गिवन कि इफ you will multiply the original number by 9. So 9 into what is the value of the original number? Original number is 10x plus y. ठीक है, when you multiply your original number by 9, so it becomes equal to twice of the number obtained by reversing the order of the original number. Yes, twice of the number obtained by reversing the original number. So here I will write 2 into 10y plus x. So when I solve this equation, I will get 90x plus 9y equal 20y plus 2x. ठीक है, नाउ यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन. x वाली टर्म को इधर लेके जाओगे तो व्हाट आंसर यू विल गेट, 88x. ठीक है, 9y और इधर 20y है. ठीक है, तो व्हेन यू सॉल्व दिस, या तो इसको इधर ले जाओ y वाली टर्म को, तो यू विल गेट x 88x इक्वल कितना आएगा, 11y. yes, now you can see both sides, whether I will say left hand side or right hand side. मेरा जो इक्वेशन आ रही है 88x is equals to 11y, इसमें 11 is common, so I will say 8x is equals to y. yes, 8x is equals to y आ गया. is this clear, is the steps clear? yes, tell me, are these steps clear? yes. Now, so now you can solve. बस हो गया क्वेश्चन, और क्या बचा था क्वेश्चन में, सॉल्व क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y now. yes, okay, very good. Now see the next question. Your next question is, Meena went to a bank to withdraw ₹2000. मीना बैंक गई, उसको 2000 रुपीज लेने हैं. ठीक है, she asked the cashier to give her 50 and 100 notes only. उसको सिर्फ किसके नोट्स चाहिए, 50 और 100 नोट्स चाहिए, सिर्फ 2 टाइप्स के नोट्स चाहिए. तो यू गेट अ हिंट हियर, यू विल कंसिडर लेट 50 rupees notes equal x और 100 rupees notes को यू आर रिप्रेजेंटिंग बाय y. अब टोटल नोट देखो, उसको कितने नोट्स मिले टोटल, 25. तो कैन यू से x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. यस, ठीक है, यस. अब सेकेंड केस जो आपको बोला है, क्या बोला है, टोटल उसको कितने पैसे लेने हैं, 2000. अब मुझे बताओ 2000 क्या हो गई, अमाउंट हो गई, मैंने तुम्हें 200 रुपए